الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے مسلمانوں، تم درگزر سے کام لو، معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو مکی زندگی میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی شروع میں یہی حکم تھا کہ جو بھی کوئی زیادتی کرے تو زیادتی کا بدلہ نہ لو بلکہ معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ فاعفو کا معنی ہے کہ اگر کوئی ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے تو ہاتھ سے اس کا بدلہ نہ لو، اور وصفحو کا معنی یہ ہے کہ زبان سے بھی اس کو برا بھلا نہ کہو۔ چنانچہ مسلمان اس حکم پر قائم رہے یہاں تک کہ پھر جہاد کا حکم آ گیا، تو اس کے بعد پھر ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جہاد کے اندر گزاری، جسے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا رزق تلوار میں ہے، اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی سربلندی جہاد میں ہے۔ تو جب تک حکم نہیں آیا اس وقت تک پورے طور پر برداشت کیا، جب اللہ کا حکم آ گیا پھر اس کو بھی پورا کرنے کا حق ادا کیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس دوران جب تک کہ تمہیں جہاد کا حکم نہیں آتا اس وقت تک اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں تمہارے ذمہ لگی ہیں ان کو اچھے طریقے سے کرتے چلے جاؤ تاکہ ایمان کے اعتبار سے تم اندر سے مضبوط ہو جاؤ، آنے والے حالات تمہیں متاثر نہ کر سکیں۔ چنانچہ پھر ساری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ صحابہ کرام پر مشکل سے مشکل وقت آئے تب بھی وہ اپنے ایمان سے، عمل سے ذرہ بر پیچھے نہیں ہٹے، اور اچھے سے اچھے حالات آئے تو وہ بھی ان کو متاثر نہیں کر سکے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بدنی باتیں مراد نماز قائم کرتے رہو اور مالی عبادتیں زکوٰۃ ادا کرتے رہو، جو تمہیں احکام دیے گئے ہیں ان کو پورا کرتے رہو۔ خلاصہ ان دونوں چیزوں کا یہی بیان کیا جاتا ہے تمام تفاسیر میں، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ جو خیر کی چیز بھی تم اپنے فائدے کی آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیں گے، آخرت میں تمہیں وہ مل جائے گی۔ کوئی بھی خیر کی بات، خیر کا کام کیا ہوا تمہارا ضائع نہیں ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں، مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں، کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر یہود یا عیسائی۔ تو انہوں نے مذہب کو گویا کہ اپنی قوم بنا لیا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ آخرت کی نجات کا مدار وہ اس بات پر ہے کہ کوئی یہودیت سے تعلق رکھتا ہے یا عیسائیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ یہود جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی جنت میں جائیں گے۔ دونوں قولوں کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ ان کا آپس میں بھی اختلاف تھا۔ یہود عیسائیوں کا داخلہ منع سمجھتے تھے جنت میں، اور عیسائی یہودیوں کا داخلہ منع سمجھتے تھے۔ اپنے اپنے بارے میں جو کچھ کہتے تھے اس کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جانے کی بنیاد یہ سمجھ لیا ہے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا، حالانکہ نجات کی بنیاد
इस बात पर नहीं है, बल्कि नजात की बुनियाद चंद चीजों पर है जिसका तज़किरा आगे आ रहा है। तिलका अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशात हैं, ये कि हम जन्नत में जाएंगे, ये महज उनकी ख्वाहिशात हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप इनको कह दें कि अपनी कोई दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम वाकई इस बात में सच्चे हो कि यहूदी जन्नत में जाएंगे या ईसाई, तो इस पर कोई दलील है तो दलील ले आओ। तो जाहिर है कि जो चीज़ बेदलील होगी वो महज तमन्ना और ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आगे फिर बख्शिश का मदार बताया जा रहा है, भला क्यों नहीं। मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बी, कि जो शख्स अपने चेहरे को अल्लाह के सामने झुका दे और वो नेकी करने का इरादा रखता हो, नेकी करता हो, तो उसको उसका अजर मिलेगा उसके रब के यहाँ से। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उन पर कोई डर होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ पर दो बुनियादें जिक्र की हैं, एक अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करना, अल्लाह के अहकाम को पूरा करना, जो कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इनको दिया है उस पर अमल पैरा होना, ये बख्शिश का मदार है। और इसी तरह कि ये जो कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो, वहुवा मुहसिनुन, कि वो नेकी करने का इरादा रखते हो, उसमें रियाकारी मकसूद ना हो, दिखलावा मकसूद ना हो, कोई और दुनियावी गरज मकसूद ना हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हटी हुई चीज़ ना हो। तो अमल, मजहब पर अमल करना ये बख्शिश का मदार होता है, महज मजहब का नाम लेना ये बख्शिश का मदार नहीं होता। यहूदो नसारा से जो गलती हुई है, उन्होंने अपनी बरादरियों की तरह मजहब को एक बरादरी समझ लिया है। जैसे हमारी कौमियतें हैं, पहचान के लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं, कबीले हैं, कोई किसी कबीले से किसी कौम से ताल्लुक रखता है, कोई किसी कौम से ताल्लुक रखता है, तो ये पहचान की चीजें हैं, ये बख्शिश के मदार नहीं है। तो इसी तरह मुसलमानों को भी इसमें गलती लगती जा रही है। मुसलमानों का भी ख्याल ये है कि चूंकि हम मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हैं, इसलिए कि हमारा नाम भी मुसलमानों की फहरिस्त में आ गया है, तो चुनाचे हमारी बख्शिश हो जाएगी, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, और देखी जाएगी, ये होगा वो होगा। तो हमने भी यही तसव्वुर कर लिया है, उसी नहज पे चल पड़े हैं कि शायद बख्शिश के लिए महज इस्लाम का नाम ले लेना, मुसलमान का नाम आ जाना, ये काफी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़े लफ्जों में फरमाया कि ये काफी नहीं है, ये महज तमन्नाएं और ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, हकीकत नहीं हो सकती। हकीकत अमल है, और अमल भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीकों के मुताबिक है और सही नीयत से है, तो फिर ऐसा होगा। चुनाचे हम देखते हैं कि इस वक्त मुसलमान पस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ ये जुमला भी कहने को मिलता है कि ये सारी तबाही इस्लाम की वजह से आई है। कुछ तो सरेआम ये कहते हैं कि इस्लाम की वजह से है, और कुछ सरेआम नहीं कहते, थोड़ा सा बल डाल के कहते हैं कि ये बस बुनियाद परस्ती की वजह से हैं, ये मजहबी लोगों की वजह से हैं, ये मजहबी तबके की वजह से हैं। तो कुछ थोड़ा सा बल डाल के यही बात कहते हैं, कुछ सीधे सीधे कह देते हैं। तो हर एक अपनी अपनी सतह के एतबार से इस्लाम को मोरद इल्जाम ठहरा रहा है, हालांकि इस्लाम के साथ हमारा नाता इतना कमजोर हो गया है कि दूर तक भी नहीं है। तो जैसे हम अल्लामा इकबाल के शार में भी पढ़ते रहते हैं कि वजह हमारी ये यहूदियों जैसी है, ईसाइयों जैसी है, और हमारा रहन सहन सारा उन जैसा है, तो हम उनमें खड़े हुए पहचाने भी नहीं जाते, और नक्काली हम सारी उनकी करते हैं और ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं, चुनाचे हमें पहले मुसलमानों जैसी तरक्कियात नसीब होंगी। तो ये हमारा ख्याल है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी तरह हर चीज का अपना एक खासा होता है। मिसाल के तौर पर तिजारत है,
तजारत का मकसद माल को बढ़ाना है। जो बंदा तजारत करता है इसीलिए करता है ताकि उसका माल बढ़े। कोई बीमार है वो इलाज मुआवजा करवाता है, दवाई इस्तेमाल करता है ताकि सेहत हासिल हो। अब एक बंदा तजारत तो दिन रात करता है और दवा नहीं लेता, फिर साथ कहता है कि मैं मेहनत तो दिन रात कर रहा हूं, मुझे सेहत क्यों हासिल नहीं हो रही। जाहिर है वो सेहत हासिल करने वाला काम ही नहीं कर रहा। वो दुआ लेगा तो उसको सेहत हासिल होगी, तजारत करने से उसको सेहत हासिल नहीं होगी। इसी तरह एक आदमी दुआ तो दिन रात बड़े एहतमाम से खाता है, आराम भी करता है, बेड रेस्ट भी करता है, वो कहते हैं माल नहीं बढ़ रहा, हालांकि मैं बड़े एहतमाम से दुआएं खा रहा हूं। जाहिर है कि माल कैसे बढ़ेगा, माल बढ़ाने वाले वो काम ही नहीं कर रहा। तो हम इस वजह से भी बहुत बड़ी गलती में हैं। इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात अर्ज करेंगे कि कुफार के हम दुनियावी एतबार से तरक्की करने को देखते हैं और अपनी तनज़्ज़ुली को देखते हैं, साथ ये नहीं देखते कि तजारत में तरक्की, माल में तरक्की की अपनी बुनियादें हैं और तनज़्ज़ुली की अपनी बुनियादें। झूठ, फ्रॉड, धोखा, मिलावट, ये सारी चीजें तनज़्ज़ुली माल की कमी की चीजें हैं जो हमारे अंदर कूट कूट कर भर दी गई हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हम उनकी तरह मालदार नहीं है, हमने उनसे महज फहाशी और उरियानी ली है। उनकी तजारत में सच्चाई और ठोस बुनियादों पर काम, उसकी तरफ हम नहीं देखते। तो इंशाल्लाह इस पर कुछ बात अर्ज करके फिर आगे चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान का उसलूब समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए।